ठीक है. So good evening. So this is the fifth class of revision or booster classes for PT 2026. In the first class we targeted the prehistoric cultures. In the second, the Indus Valley civilization. In the third, the Vedic civilization. In the fourth, that was the last class, we talked about the religious life. We started with the Vedic, Indus, then proceeded to cover the Vedic, and then we ended the class with a discussion on the philosophical aspects of Buddhism and Jainism as part of the heterodox sects. Today we plan to talk about this part of literature part of our preparation. Now if we take note of this part, so here we have some important segments, components on which questions are possible. Usually questions are very simple. At times they ask you also about the authors, simply their identity as authors, that they can give you a list of the names and they can ask you कि ये लोग कौन थे. कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. किताबों के नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके थीम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेन फोकस होता है कि किस तरह से हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में किसी टेक्स्ट ने या किसी पार्ट ऑफ लिटरेचर ने हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में किस तरह से और किस हद तक हेल्प की है. जिससे जितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं. आज का हमारा टारगेट है कि वी कैन टेक नोट ऑफ द हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, a very important part of our discussion. The second, we can take note of the literature of the heterodox sects. When we talk about heterodox sects, we have many, but two of them are particularly noticeable: Jainism and Buddhism. Let us begin with the first one, that is Hindu religious literature. This is found in Sanskrit. Here we have Pali, Sanskrit, as well as what can be called Ardh Magadhi. Pali and Sanskrit we notice in case of Buddhism. Ardh Magadhi, this is about Buddhism. Ardh Magadhi is in case of Jainism. So Hindu religious literature is part of Sanskrit literature. That's it is in this way we are also going to cover a large part of the Sanskrit literature, except the classical, for which we can plan later on, or if the time permits, we can shift to the classical literature also today. But our primary target, Hindu religious literature and the literature of the heterodox sects for today's fifth class of the PT series. Clear? Now, let us proceed with the first one, that is Hindu religious literature. Now if we take note of the segments of the Hindu religious literature, the oldest part is what we call the Vedic literature.
then we can say post Vedic literature. This is the literature that developed between 1500 BC to around 600 BC. Now beyond 600 BC, whatever was written is part of the post-Vedic literature, at least till the time of the Mauryas. So when we take note of post-Vedic literature, we place this literature between 600 BC to around 200 BC. Clear? Then after this, we have something that we identify as the Dharma Shastra literature, or what is called Smritis, that is memory based literature. We have a long time, we can say from 200 BC to around 900 BC. We have different texts in the category of Dharma Shastras which came to be written. Then around the same time, we can also think of, you may have heard of the epics, that is the Ramayana and the महाभारत. बहुत अच्छे से इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत होगी नहीं इनके बारे में. उसी तरह से इसी टाइम पीरियड में एक और ट्रेंड चल रहा है, एंड दैट इज़ अबाउट दी पुराणास. बहुत सारे पुराण्स हैं, इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इनसे किस तरह की जानकारी मिलती है. ऑल दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अस. उसके बाद के लिटरेचर में हमें ओरिजिनल वर्क्स बहुत कम दिखाई देते हैं. वी हैव व्हाट वी कैन से टीकाज, विच आर बेसिकली कमेंट्रीज. वी हैव भाष्याज, वी हैव निबंधाज. टीकाज, भाष्याज, निबंधाज, these are basically commentaries on the previous literature, including the Vedic. Is this clear? So this is what we plan to discuss as part of the Hindu religious literature. Particular importance can be given to the Vedic literature, post-Vedic literature, Dharma Shastras. Epics we are usually familiar with. We are familiar with their themes. We are familiar with the kind of knowledge we derive. Here some remarks about the Puranas. Tikas, Bhasyas and Nibandhas, they are many. So here you just know that they are in the category of commentaries made on the previous texts. That much knowledge will be sufficient for us. और अगर उनमें कोई बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है तो फिर उसकी बात की जा सकती है, नहीं तो फिर हम लोग छोड़ देंगे. अप्रोच क्लियर है? तो आइए हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं कहाँ से? वैदिक लिटरेचर से. इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जनरल रिमार्क के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि वैदिक लिटरेचर इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस लिटरेचर. बाद के लिटरेचर में जो कुछ भी लिखा गया, जो कुछ भी पढ़ा सुना गया, लार्जली डेराइव्ड फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर. वहाँ से थीम्स लिए गए, वहाँ से कंसेप्ट्स लिए गए, उनका इलाबोरेशन हुआ. तो कहीं ना कहीं एक वैदिक अंडर करंट आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगा. नाउ इफ यू टेक नोट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर इज, दैट इज टाइम वी नो 1500 to 600 BC. We have what we call श्रुतिज. श्रुतिज का मतलब होता है समथिंग विच इज हर्ड ऑफ.
that is not created by the man, not a result of human contemplation, but a system of knowledge that is revealed to the mankind. Shruti, something that is heard of. ठीक है. एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, अपौरुषेय, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे. अपौरुषेय का मतलब होता है कि जिसमें किसी पुरुष का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें कोई ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व ना हो. ठीक है. तो श्रुतिज अपौरुषेय, एंड देन वी हैव वन मोर टर्म that is samhitas. samhitas samhitas का मतलब होता है कलेक्शन. samhitas का मतलब है कलेक्शन. अब अगर इनकी बात करें हम, तो 4 वेदास, we have 4 Vedas: the Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and the अथर्व वेदा. ये 4 किसके हिस्सा हैं? संहिताज के. ये 4 किसके हिस्सा हैं? अपौरुषेय. ये 4 को क्या कहलाएंगे? श्रुति. अब यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है. आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द श्रुति लिटरेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अपौरुषेय, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द संहिताज. संहिता का मतलब होता है कलेक्शन. So these 4 Vedas are part of the collection, part of the Shrutis, part of the Apaurushaya. That is the part of Hindi literature, Hindu religious literature, which is not attributed to human agencies. किसी तरह की human agency का involvement इसमें नहीं माना जाता है. Divine, religious. Is this clear? Now let us proceed one by one. We can take note of the Rig Veda, then we can take note of the Sam Veda, we can take note of the Yajur Veda, and then Atharva Veda. Rig Veda. So we have certain facts about the Rig Veda which can be important. That this is Samhita or collection of hymns and prayers. क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड प्रेयर्स? द आंसर इज द ऋग वेदा. These hymns and prayers are dedicated or devoted to the Vedic deities. कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात की थी कि नेचुरल पॉलीथिज्म के तहत बहुत सारे देवता हैं, तो उन्हीं देवताओं की शान में, उन्हीं की तारीफ में इन्हें कंपोज किया गया है और इन्हीं के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ऋग्वेदा कहते हैं, या ऋग्वेदा, ऋग्वैदिक संहिता कहते हैं. ठीक है. एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो वैदिक सिस्टम ऑफ नॉलेज था, इसमें अभी राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. इन द वैदिक फेज वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग. Before the Vedic, we have the Indus Valley civilization, and the people of Indus Valley civilization knew how to write. It is our problem or our limitation that we have not been able to decipher their script. लेकिन उसके बाद जो आर्याज आते हैं, तो वैदिक लिटरेचर में राइटिंग के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलता जिसको देखकर पढ़कर ऐसा लगे कि उनके पास राइटिंग का कोई सिस्टम था, कोई स्क्रिप्ट थी उनकी. स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट बाद में होता है. वैदिक टाइम में स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं है. ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है.
तो फिर ये जो श्रुतिस थे, दे वर ओरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ओरल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आपको उसे रट लेना है बाय हार्ट और आने वाली जनरेशन को उसी तरह से रटा देना है, और फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये जो हिम्स एंड प्रेयर्स हैं, ये भी ओरली ट्रांसमिट होते रहे बहुत दिनों तक। ये आकर कब लिखे गए, इनको कब लिखा गया, इसके बारे में हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सीज हैं। फिलहाल इस एग्ज़ाम के लिए, पीटी एग्ज़ाम के लिए, उस तरह की कंट्रोवर्सी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सो ऋग वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड प्रेयर्स डेडिकेटेड और डिवोटेड टू द वैदिक डेइटीज़। उसमें उनको क्या किया गया है, प्रेज किया गया है। इसी बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि इंद्रा वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेइटी, इसलिए कि सबसे ज़्यादा प्रेज ऋग्वेद में किसके लिए है, इंद्रा के लिए है। हालांकि उसको राउडी कहा गया है, इमोरल कहा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेफरेंसेस ऋग्वेदा में इंद्र के ही मिलते हैं, और इसी वजह से हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इंदिरा वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटी ऑफ द आर्याज, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि वी हैव 10 मंडलाज, या फिर उससे पहले एक चीज़ और है कि इट बियर्स, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऋग्वेदा, इट बियर्स रिजेम्बलेंस विथ द ओल्डेस्ट Iranian text, ज़ेंद अवेस्ता। आजकल ईरान न्यूज़ में है, ख़बरों में है। कुछ लोग ईरान को सपोर्ट करते हुए सिविलाइजेशनल लिंक की बात कर रहे हैं कि भारत के साथ उसका सिविलाइजेशनल लिंक है। तो अगर इस सिविलाइजेशनल लिंक की बात करें और एग्जामिनर के ध्यान में अगर ये बात जाए, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये वैदिक टाइम से ही माना जाता है। ऐसा लगता है कि उनका जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है दैट इज़ ज़ेंद अवेस्ता, और हमारे कल्चर में हिंदुज़म से रिलेटेड जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेदा, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। कुछ वर्ड्स एक जैसे हैं, कुछ कंसेप्ट्स एक जैसे हैं, रेफरेंसेस एक जैसे हैं। ये अपने आप में ही पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इज दिस क्लियर? अगली चीज़ जो हमें बात करनी है, अभी हम लोग ऋग्वेद के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो भी बातें होंगी। First thing we have discussed, it is collection of hymns and prayers. Second thing, that it bears resemblance with the Zend Avesta. Third ये था कि ये जो प्रेयर्स थे, इन प्रेयर्स में रिसाइट करने के लिए एक खास तौर का प्रिस्ट होता था, जिसके लिए होत्री वर्ड का इस्तेमाल होता है। सो हु वाज होत्री? होत्री वाज द प्रिस्ट हु रिसाइटेड द hymns and prayers of the Rig Veda. It was yet not about singing. वो साम वेद के साथ शुरू होगा, लेकिन सिंपल रिसाइटेशन was made by a priest called Hotri. Is that clear? यहाँ पर we have 10 mandalas. 10 mandalas. Mandalas को हम लोग मान सकते हैं कि these are sections. 10 मंडलाज। अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो इंटरनल कुछ इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, और ऐसा लगता है कि 10 मंडला हैं तो सही, लेकिन सब एक वक्त के नहीं हैं, अलग अलग वक्त पे इनका इवोल्यूशन हुआ। ये एक ही कंपाइलेशन के हिस्सा है, लेकिन इसमें क्रोनोलॉजी के अलग अलग लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 10 मंडलाज में सबसे जो पुराने हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो उसमें सेकंड, थर्ड और नाइन्थ को सबसे पुराना माना जाता है, और लेटेस्ट की अगर हम बात करें, जो कि सबसे बाद के माने जाते हैं, वो है फर्स्ट एंड 10th। फर्स्ट एंड 10th, फर्स्ट एंड 10th are supposed to be the oldest. Sorry, this is not 9th, this is 7th. These are the oldest. For second, third and 7th supposed to be the oldest. First, 9th and 10th, they are supposed to be the latest.
उसमें से भी फर्स्ट और 10th को कुछ लोग मानते हैं कि दे आर इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि समथिंग एडेड लेटर ऑन। क्लियर? तो इनमें से कुछ रेफरेंसेस ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे थर्ड मंडला में वी हैव द फेमस गायत्री मंत्रा। ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। गायत्री मंत्रा इज डेडिकेटेड टू अ गॉड हुज नेम इज मेंशन्ड एज सावित्री और सन गॉड। अपरेंट जो पर्पस गायत्री मंत्र का दिखता है विच इज कंपाइल्ड इन द थर्ड is the expansion of the Aryan world. Expansion of the Aryan world. That they wanted expansion of their world. बाद में चलकर कोनोटेशन थोड़ा चेंज होता है और इस एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ जियोग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं बल्कि एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस भी हो जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र इज समथिंग दैट इज मेनली अबाउट एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस इन आवर टाइम। इज दैट क्लियर? ये जो 7th मंडला है, इस मंडला में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। इसी मंडल में हमें मिलता है रेफरेंसेस टू द बैटल ऑफ 10 किंग्स। याद है बैटल ऑफ 10 किंग्स? वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ अ चीफ ऑफ द भारता ट्राइब, वन ऑफ द ऋग्वैदिक ट्राइब्स, पार्ट ऑफ द पंचजना। वैदिक लिटरेचर में एक वर्ड मिलता है पंचजन। ये पूछ सकते हैं कि पंचजन का मतलब क्या है, तो पंचजना का मतलब है 5 ग्रेट ट्राइब्स ऑफ द ऋग्वैदिक टाइम। इन्हीं में से एक जो ट्राइब था जिसका नाम था भरत, और भरता ट्राइब का रूलर था सुदास, और इसी सुदास के खिलाफ लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स। हमने प्रीवियस क्लास में इसकी चर्चा की थी, जिसमें कि सुदासा असिस्टेड बाय हिज प्रिस्ट हुज नेम वाज वशिष्ठा defeated an alliance of 10 tribes or 10 chiefs assisted by Vishwamitra. Vishwamitra is usually mentioned as the rival of Vashishth. Is this clear? और इस लड़ाई का आउटकम क्या था? सुदासा इमर्ज्ड विक्टोरियस। और इस लड़ाई का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस बैटल थ्रोज लाइट ऑन द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट that appears to be political mainly, less racial, less cultural, but mainly political. Is this clear? यहाँ 10th मंडला का भी एक अपना स्पेशल सिग्निफिकेंस है और ये भी हमारा डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको याद हो कि 10th मंडला में ही हमें एक हिम मिलता है जिसको कहते हैं द क्रिएशन हिम, यानी कि पुरुष सुक्ता, जिसमें कि प्रजापत मनु या पुरुष को कहा गया है कि उसने एक सेक्रीफाइस किया था जिसको पुरुष मेधा सेक्रीफाइस कहते हैं। एंड उसी के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से नेचुरल चीज़ें जो हम देखते हैं और सोशल क्लासेस जिनसे हम वाकिफ़ हैं उन सब का राइज हुआ था। सो दिस 3 मेजर रेफरेंसेस वी शुड रिमेंबर। द थर्ड मंडला ऑफ द ऋग्वेदा नोन फॉर Gayatri Mantra, 10th Mandala known for the earliest reference to the Varna system, 4-fold division of the society, Purush Medha sacrifice, Purush Sukta, and the 7th is associated with the battle of 10 kings that took place on the bank of river Ravi. क्लियर है? इतना कुछ हम लोग जानेंगे किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। बाकी और चीज़ें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हैं कि जैसे नदियों के भी नाम मिलते हैं, इनका एक जनरल सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। हालांकि उसकी मेन एग्जामिनेशन में ज़रूरत पड़ती है कि हाउ यूजफुल इज़ द वैदिक लिटरेचर फॉर हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन, इसलिए उस डायमेंशन को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे। अभी हम लोग बस फैक्चुअल डिटेल्स ले रहे हैं, वैसे डिटेल्स जो कि पीटी में हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी हम सिग्निफिकेंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम डिटेल्स की बात करेंगे। ऋग्वेद के बाद वी हैव सामवेद। सामवेद के बारे में आता है कि दिस इज लार्जली अ रिप्रोडक्शन, रिकलेक्शन भी कह सकते हैं, बट
reproduction of the hymns and prayers of the Rig Veda, इसमें एक्सेप्ट 75 या 76 वर्सेस को छोड़ दिया जाए जो कि नए हैं, सारे के सारे वर्सेस कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, विथ ओनली वन डिफरेंस, दैट इज कि विथ म्यूजिकल नोट्स। इसको गाने के लिए कंपाइल किया गया है तो उसमें म्यूजिकल नोट्स ऐड कर दिए गए हैं। इसको गाने के लिए एक पृष्ठ का इस्तेमाल होता था, उस पृष्ठ को कहते हैं उद्गातर। So Udgatar is associated with Samveda in the same way as Hotri is associated with the Rig Veda. और सामवेद से ही माना जाता है कि there is a tradition of music that is known as समन सिंगिंग। म्यूज़िक को काफ़ी अहमियत दी गई वैदिक टाइम में। म्यूज़िक के साथ बहुत सारे मैजिकल पावर, सुपरस्टिशियस पावर भी जोड़ दिए गए। उसी में से एक ट्रेडिशन डेवलप हुआ जिसको कहते हैं समन सिंगिंग। और इसीलिए कभी कभी हम मानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जो कि बाद में क्लासिकल फॉर्म तक डेवलप होता है, उसकी ओरिजिन अगर इन वेदों में से किसी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है तो वो वेद कौन सा है? सामवेद है। इज दिस क्लियर? तो सामवेद के बारे में ये दो तीन चीज़ें याद रखिए। एक तो ये कि लार्जली रिप्रोडक्शन ऑफ द ऋग वेदा। सेकेंडली, हियर वी हैव समन सिंगिंग एंड वी हैव द वर्सेस sung by a priest called Udgatar, and we can trace the origin of the Indian classical music to the tradition associated with the Samveda. Is this clear? सामवेद के बाद अगला नंबर है यजुर्वेद का। यजुर्वेद के साथ कुछ खास चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहली बार, फर्स्ट टाइम, रिचुअल्स आर एक्सप्लेन्ड। रिचुअल्स वैदिक सोसाइटी में नए नहीं थे, ऋग्वैदिक टाइम में भी थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यजुर्वेद का कंपाइलेशन जब हुआ उस समय तक आते आते रिचुअल्स इतनी अहमियत रखने लगे थे वैदिक लाइफ में कि उनको एक्सप्लेन किया गया, उनको कलेक्ट किया गया। और ये रिचुअल्स का रेफरेंस हमें पहली बार कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। बाकी वेदों से यजुर्वेद इसलिए अलग है कि अभी तक यहाँ पर ये दोनों किस फॉर्म में हैं? वर्स फॉर्म में। ये ऋग्वेद वर्स फॉर्म में, सामवेद वर्स फॉर्म में, यजुर्वेद के साथ हमें पहली बार प्रोज फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ये दो स्पेशल चीज़ें हैं यजुर्वेद के बारे में। यहाँ पर एक और चीज़ है कि दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट। वाइट के लिए हमारे कल्चर में दो वर्ड हैं, आपने सुना होगा। एक है शुक्ल और दूसरा है श्वेत। So we have Shukla Yajurveda, this is you. We have Shwet Yajurveda, that is a part of Yajurveda. Black is called in our culture Krishna, or there is one more word that is called Shyam. तो कौन सा वेद हमें दोनों फॉर्म में मिलता है? प्रोज फॉर्म में भी मिलता है और पोएट्री फॉर्म में भी मिलता है। सो दैट वेद इज यजुर्वेदा। किसमें रिचुअल्स पहली बार मिलते हैं? दैट इज यजुर्वेदा। इतना हम इसके बारे में जानें, इतना हमारे लिए काफ़ी होगा।
फिर इन 4 वेदों में से सबसे आखिर में माना जाता है कि वी हैव अथर्ववेदा। अथर्ववेदा तक आते आते ऐसा लगता है कि आर्याज का नॉन आर्यन लोगों के साथ बहुत डीप लेवल का कल्चरल कनेक्शन डेवलप हो चुका था। यू मे बी नोइंग अबाउट ईस्टवर्ड माइग्रेशन ऑफ द आर्याज, और जैसे जैसे आर्याज ईस्ट की तरफ माइग्रेट करते गए, जैसे जैसे सेटल्ड लाइफ की तरफ शिफ्ट होते चले गए, जैसे जैसे एग्रीकल्चर उनकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बनता गया, तो अगर हम सेटल्ड लाइफ जीते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चर पहले से नोन था। वी हैव न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक पीपल लिविंग इन इंडिया। अगर वैदिक लोग भी सेटल्ड लाइफ जीने लगे तो उन लोगों के साथ जो कि उनके जैसे नहीं थे, उनको लंबा वक्त मिला होगा कि नहीं मिला होगा? नोमेडिक दौर में उस तरह का वक्त नहीं मिला होगा। तो एक तरफ ईस्टवर्ड माइग्रेशन हो रहा, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर, तीसरी तरफ सेटल लाइफ। तो ऐसा लगता है कि आर्याज का इंटरेक्शन इस समय तक आते आते इस लेवल तक बढ़ चुका था कि अथर्ववेदा में सिर्फ वैदिक आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, बल्कि कुछ नॉन वैदिक या नॉन आर्यन आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिलते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो 2-3 चीज़ें खास तौर से नोटिसेबल है। एक तो ये है कि अथर्ववेदा में मैजिक, चार्म्स, स्पेल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं जादू, टोना, टोटका, तो किस वेद में जादू, टोना, टोटका जैसी चीज़ों की बात की गई है? अथर्ववेद में की गई है। और ये जादू, टोना, टोटका जैसी चीज़ें किसके साथ रिलेट करके देखी जाती हैं? नॉन आर्यन सोशल ग्रुप्स के साथ। हालांकि आर्याज में भी इस तरह के बिलीफ्स थे, उनका भी घोस्ट में, डीमंस में, सुपरनेचुरल एंटिटीज़ में यकीन था, लेकिन आमतौर पे ईस्टर्न ट्रेडिशंस को आज भी मैजिक, चार्म्स और स्पेल्स के साथ ज़्यादा क्लोज तरीके से जोड़कर देखा जाता है। जैसे तांत्रिज्म बाद के दिनों में जो डेवलप होगा, तांत्रिज्म का मेन रीजन कौन सा माना जाता है? ईस्ट माना जाता है आज भी। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर आपको एक पंजाब का तांत्रिक मिले और एक बंगाल का तांत्रिक मिले, तो इन दोनों तांत्रिकों में आप किसे अप्रोच करेंगे? बंगाल के तांत्रिक को अप्रोच करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि क्यों। तो ये टेंडेंसी बहुत पहले से दिखाई देती है कि ईस्टर्न ट्रेडिशंस, नॉन आर्यन ट्रेडिशंस आर सपोज टू बी मोर क्लोजली एसोसिएटेड विथ मैजिक, चार्म्स एंड स्पेल्स। इसी वजह से अथर्ववेदा में मैजिक, चार्म्स एंड स्पेल्स को इस बात का इंडिकेशन माना जाता है कि ऋग वैदिक आर्याज का या वैदिक आर्याज का कनेक्शन नॉन वैदिक लोगों के साथ या नॉन आर्यन ट्रेडिशन के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ क्लोज कनेक्शन डेवलप होने लगा था। यहाँ पर कल भी मेरे ख्याल से कॉन्टेक्स्ट वाइज बात हुई थी कि लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में, लोकल क्रॉप्स के बारे में, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज भी लोकल लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। आपने जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स का नाम सुना होगा, पेटेंट लॉज का नाम सुना होगा। तो अगर आप हिमालय के पहाड़ों में घूमें तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की क्या क्वालिटीज़ है, वो किस काम में आते हैं, उसके बारे में आप बेहतर जानेंगे कि वहाँ के लोग जानेंगे। और अगर आप भी जानते हैं उनके बारे में, तो इसका मतलब क्या है कि आपका उन लोगों के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। सो ये क्लोज कनेक्शन, जिसको कभी कभी आर्यनाइजेशन भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि इस बात से भी रिफ्लेक्ट होता है कि अथर्ववेदा में वी हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमें दिखाई देते हैं। और इसी वजह से देयर इज़ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज़ नोन एज आयुर्वेदा। अगर आपसे पूछे कि किस वेद से आयुर्वेद का जन्म होता है, तो आंसर क्या होगा? अथर्ववेदा। इज दिस क्लियर? अब इन 4 वेदास के बाद हमें इस पूरे दौरान 1500 to 600 Vedic society was never static. Vedic economy was also not static. Political system was also changing. Life was becoming more complex. Rituals were dominating. Brahmanas were dominating. Yesterday, while talking about religious life, we talked about varnashram dharma. तो जब ये कुछ होने लगेगा तो इन सब का रिफ्लेक्शन लिटरेचर में होगा या नहीं होगा? किसी भी वक्त का लिटरेचर इसीलिए जाना जाता है कि उस वक्त का लिटरेचर
जिस वक्त का भी वो हो, उस वक्त को वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम. रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम सिंपली मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ द टाइम. तो अगर मान लीजिए कि प्रेमचंद की बात हो रही है और प्रेमचंद की किताबों में वो कॉन्टेक्स्ट नहीं रिफ्लेक्ट होता है जिसमें प्रेमचंद जी रहे थे और लिख रहे थे, तो इसका मतलब है कि उनकी रचना, उनके काम में कुछ कमी रह गई, या फिर ऑथर उतना अवेयर नहीं था कि अपने वक्त की रियलिटीज़ को अपने राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सके, या उसके बारे में इतना सेंसिटिव नहीं था कि उसे देख सके, ऑब्जर्व कर सके. तो जब भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो उसका रिफ्लेक्शन जरूर होगा लिटरेचर में या उस वक्त के चीज़ों में. अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वी हैव सम वर्क्स जिनको हम कह सकते हैं कि दीज आर वर्क्स डेराइव्ड फ्रॉम द वेदास. वी कॉल देम डेराइवेटिव वर्क्स. ओरिजिनल वर्क्स नहीं है ये, डेराइव्ड फ्रॉम द वैदिक. जो फाउंटेन हेड है वैदिक लिटरेचर का वो तो ऋग्वेदा ही रहेगा. उसी में फर्दर एक्सप्लेनेशन होता चला गया, उसी में नई चीज़ें जुड़ती चली गई. और देखा था हम लोगों ने अभी अथर्ववेद तक आते थे काफ़ी नई चीज़ें जुड़ चुकी थी. लेकिन इसी बीच में जो वैदिक सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो रहे थे उसका भी रिफ्लेक्शन होने लगा. और जब भी इस तरह के चेंजेस होते हैं तो अलग अलग नज़रिया डेवलप होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं. और यहाँ पर भी हम लोगों ने कल के रिलीजन की क्लास में भी देखा था, और आज भी एक कनेक्शन बिठा सकते हैं हम लोग, कि वी हैव टेक्स्ट्स विच आर नोन एज ब्राह्मणास. वी हैव टेक्स्ट विच आर नोन एज ब्राह्मणास. दे आर पार्ट ऑफ द डेराइवेटिव वर्क्स. ये बहुत सारे हैं. ये जो ब्राह्मणास हैं दे आर रिलेटेड टू द वेदास. वेदास से ही इनको डेराइव किया गया है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं. और ब्राह्मणास में वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव. और ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव इस समय क्या था? सोशल हायरार्की को एक्सेप्ट करना, रिचुअल्स को परफॉर्म करना. यस्टरडे वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम रिचुअल्स. तो इनका जो अप्रोच माना जाता है वो है रिचुअलिस्टिक. तो अगर कुछ इस तरह के नाम देकर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सपोज टू बी रिचुअलिस्टिक, तो आंसर इज कि एज पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर ब्राह्मणास आर सपोज टू बी रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट. इनको रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट इसलिए कहते हैं कि इनमें वी फाइंड एक्सप्लेनेशन. कोई भी चीज़ जब आती है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस. ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स. अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आरण्यकाज में कह देगा कि आरण्यकाज आर नोन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल्स. तो ये स्टेटमेंट गलत होगा. वैदिक लिटरेचर में अगर कहीं पर रिचुअल्स के ओरिजिन को, उनके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है तो दैट इज दिस पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर नोन एज द ब्राह्मणास. इज दिस क्लियर? अब इनमें से कुछ ब्राह्मणास ऐसे हैं जो कि हमारे लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारे तो नहीं. लेकिन जैसे ऋग्वेदा के साथ एक ब्राह्मण है, या जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण. तो सारे ब्राह्मण नहीं, लेकिन आप ये जानिए ऐतरेय ब्राह्मण इज इंपॉर्टेंट. देयर इज वन मोर ब्राह्मण कॉल्ड कौशितकी ब्राह्मण. कौशितकी ब्राह्मण. So Aitreya and Kaushitaki both are associated with the Rig Veda. आमतौर पे कभी कभी ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण का रेफरेंस हिस्ट्री की किताबों में मिलता है, उनमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं. लेकिन यहाँ पर जिस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं उन रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है. बस इतना जान लीजिए कि दिस टू वेदास, दिस टू टेक्स्ट्स ऐतरेय ब्राह्मण एंड कौशितकी ब्राह्मण आर पार्ट ऑफ द ब्राह्मणास एंड दे आर एसोसिएटेड विद द ऋग वेदा. ठीक है, यह कनेक्शन एक जानिए. उसी तरह से सामवेद के ब्राह्मण हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं. उनका नाम भी आमतौर पे सुनने को नहीं मिलता है. जैमिनीय ब्राह्मण, तंड महादेव, ऐसे कुछ एक नाम है.
लेकिन हाँ, यजुर्वेद जो हमारा है, यजुर्वेद से जुड़ा एक ब्राह्मण है जो कि खास तौर से जाना जाता है, उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस इस बात को लेकर है कि इसमें आर्यों के ईस्टवार्ड माइग्रेशन की बात है और इसमें बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात कही गई है। और ईस्टवार्ड माइग्रेशन और आर्यास का एग्रीकल्चर के साथ बढ़ता कनेक्शन, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इन द लेटर वैदिक टाइम वी हैव ईस्टवार्ड माइग्रेशन ऑफ द आर्याज, सेकेंड कि एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टे ऑफ देयर लाइफ। तो ये दोनों चीज़ें हमें शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि इन दोनों चीज़ों के बारे में, इन दोनों चीज़ों में कोई को रिलेशन था कि आर्याज जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते चले गए और आर्याज का नॉन आर्यन लोगों के साथ जैसे जैसे इंटरेक्शन एस्टेब्लिश होता चला गया, ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में एग्रीकल्चर की अहमियत बढ़ती चली गई। वैसे इंडिया में उनके आने से पहले एग्रीकल्चर की जानकारी थी, वी नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो आए तो अपने साथ एग्रीकल्चर की जानकारी लेकर आए, और जब इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज होता है दो कल्चर्स के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि एक कंपोजिट कल्चर डेवलप होगा जिसमें कि एग्रीकल्चर और डेवलप करेगा। और यही वजह थी कि लेटर वैदिक टाइम में एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ का कंसोलिडेशन होता है और रूरल इकोनॉमी गंगेटिक प्लेन में डेवलप होती है। सो शतपथ ब्राह्मण इज इम्पॉर्टेंट फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन इमर्जिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ईस्टवार्ड माइग्रेशन। और इसी में कॉन्टेक्स्ट वाइज मेरे ख्याल से कल भी हम लोगों ने बात की थी, वो कहानी है जिसमें सदा नीरा नदी की बात कही गई है। सदा नीरा रिवर, दैट इज गंडक रिवर, जो कि ऐसा लगता है कि बियॉन्ड गंडक भी अब आर्यास का एक्सपेंशन होने लगा था। और दो दोस्तों की बात की थी हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, एक का नाम है विदेह माथव और दूसरे का नाम है अग्नि। विदेह माथव और अग्नि दोनों पूरब की तरफ साथ बढ़ते हैं। विदेह माथव पीछे छूट जाता है, अग्नि का रास्ता सदा नीरा नदी रोक लेती है, और विदेह माथव जब वहाँ पहुँचता है तो वह अग्नि की हेल्प करता है और फिर दोनों नदी के उस पार के इलाके में रहना शुरू कर देते हैं। अब आज भी आप देखो कि एक एरिया है अपने देश में जिसको हम लोग कहते हैं विदेह। क्या आप बता सकते हो कौन सा इलाका है विदेह का? चलो विदेह नहीं जानते तो आपने कभी ये नाम सुना है वैदेही? ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? वैदेही वर्ड का इस्तेमाल मैं बताता हूँ। आपने माँ सीता का नाम सुना है, मदर सीता? उनके लिए वैदेही वर्ड का इस्तेमाल होता है। उनके जो अब्बा थे यानी कि पापा, फादर, राजा जनक, वो कहाँ के राजा थे? जनकपुर के राजा थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ जनकपुर वाज द कैपिटल। ये मिथिला का आज का जो इलाका है ना, जनकपुर कैपिटल था। स्टेट जो था वो क्या था? विदेह था। इसका मतलब है कि सम कनेक्शन विद विदेह माथव। और वह इलाका आज भी विदेह कहलाता है। वहाँ की प्रिंसेस वैदेही कहलाईं। और वहाँ के राजा जो थे जनक, उन्होंने भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लिया था। आपको पता है कि वी हैव सम लीजेंड्स रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ मदर सीता। इज दिस क्लियर? उसी तरह से लॉर्ड राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। अयोध्या वाज द कैपिटल। कौशल के राजा थे। स्टेट का नाम कौशल था। अयोध्या कौशल की राजधानी थी, है ना? कौशल्या नाम सुना है कभी आपने? मे हैव सम कनेक्शन विद कौशल। तो अगर हम कहें कि मोदी जी दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं तो सुन के कैसा लगेगा? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और दिल्ली देश की राजधानी है। तो राजा जनक जनकपुर में थे। जनकपुर कैपिटल था विदेह किंगडम का। अयोध्या राजधानी थी कौशल का। इज दैट क्लियर? तो यजुर्वेदा में विदेह माथव का जिक्र है और विदेह माथव का कनेक्शन किसी न किसी तरह से रामायण की जो थीम है, रामायण का जो थीम है, रामायण के जो लीजेंड्स हैं, उनके साथ भी एस्टेब्लिश करके देखा जा सकता है। इन एनी केस दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर, दिस इज अबाउट ईस्टवार्ड माइग्रेशन। सो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। सो जस्ट नो
Satpat Brahman and reflection of eastward migration, agricultural practices, and the river Sadanira. And Satpat Brahman is a Brahman of which Veda? यजुर्वेदा. ठीक है. अथर्ववेदा का भी एक ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, लेकिन उसका कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उसे हम लोग छोड़कर आगे बढ़ते हैं. तो इन डेराइवेटिव वर्क्स में से जो पहला था ब्राह्मणास, वो क्या बताते हैं कि सोसाइटी में ब्राह्मणास डोमिनेट करना शुरू कर चुके हैं, रिचुअलिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, हायरार्की कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है. तो थेसिस एंटीथेसिस, जब भी डोमिनेशन बढ़ता है तो उसका रेसिस्टेंस होता है. तो कुछ रेसिस्टेंस उस ज़माने में भी देखने को मिला था. हम लोगों ने कल की क्लास में ही रिलीजन की बात की है. ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स डेवलप होते हैं जिसमें कि रिचुअल्स को उतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाएगा, जिसमें सोशल हायरार्की पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल से ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन पे दिया जाएगा. इस तरह के जो डेराइवेटिव वर्क्स हैं उनको कहते हैं आरण्यकाज. और आरण्यकाज फॉरेस्ट बुक्स कहलाते हैं. बस इनके बारे में जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि दे रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एंड दे वर रिटन बाय एसेटिक्स एंड हर्मिट्स, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, who lived inside forests and whose perspective was different from the priestly classes, the brahmanas. इनको हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में मिस्टिकल टेक्स्ट हैं. दे आर मिस्टिकल, दे आर मेटाफिजिकल, जिसमें कि कुछ इस तरह के रियलिटीज़ की बात कही गई है. कल भी हम लोगों ने इन ट्रेंड की बात की थी, लेकिन दैट वाज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, मिस्टिसिज्म. अभी हम लोग लिटरेचर की बात कर रहे हैं. तो आरण्यकाज आर पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर इन विच वी हैव mystical and metaphysical trends or romantic trends, and they are attributed to ascetics and hermits who lived inside forests while composing the Aranyakas, and that's why the texts are known as Aranyakas. The term Aranyak is for forest. कल देवियों की लिस्ट में हमने देखा होगा कि एक देवी थी अरण्यानी. अरण्यानी was a forest deity. So which of the following known as forest books? Aranyakas. Which of the following are supposed to have been composed by ascetics and hermits? Aranyakas. Aranyakas are different from the Brahmanas in what sense? They are also deriving their legitimacy from the same Vedic tradition, but they are different from the Brahmanas because Brahmanas are ritualistic. All are a statement, important for a statement based questions. ठीक है ना? Brahmanas are ritualistic text, whereas Aranyakas are मिस्टिकल एंड मेटाफिजिकल, जिनमें कि रिचुअल्स को वो अहमियत नहीं दी गई है. और कहीं कहीं पर तो रिचुअल्स को ब्रोकन बोट्स भी कह दिया गया है. क्या कह दिया गया है? ब्रोकन बोट्स, टूटी नौकाएं. ब्रोकन बोट्स का मतलब क्या है? कि ऐसी चीज जो यूजलेस हो. तो एंटी रिचुअलिस्टिक सेंटिमेंट आरण्यकाज में दिखाई देता है. ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि स्टेटमेंट में इस्तेमाल हो सकता है क्वेश्चंस के दौरान. कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी रिचुअलिस्टिक? अगेन द आंसर इज आरण्यकाज. तो ये वर्ड आरण्यकाज तो एक ही रहेंगे, मतलब एक ही रहेगा, लेकिन इस पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बना के पूछा जा सकता है. और फिर कल हम लोगों ने बात की थी कि वी हैव उपनिषद्स, और उपनिषद्स की फिलॉसफी पे एक डिस्कशन हो चुका है. इसके लिए आप प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास नंबर 4 देख सकते हैं. बस इतना जान लीजिए कि उपनिषद्स का नेचर क्या है? फिलोसॉफिकल है. अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स आर सपोज टू बी फिलोसॉफिकल, तो उपनिषद्स आर सपोज टू बी फिलोसॉफिकल. अगर उपनिषद का मतलब पूछे तो उसका मतलब होता है लिटरेरी सेशंस, और अगर इनका फॉर्म पूछे सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो कि आपको उपनिषद के बारे में पता होनी चाहिए. इनमें से 2 उपनिषद ऐसे हैं जिनको लगता है कि अलग से नाम जान ले तो अच्छा रहेगा. और हम लोग बचपन से जीएस में पढ़ते आए हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सिंपल नॉन क्वेश्चंस पूछ देते हैं और हम लोग चूँकि रिवाइज नहीं किए रहते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं. जैसे आपने नाम सुना होगा सत्यमेव जयते.
ये हमारे कंपोजिट कल्चर का एक बहुत ही ऑप्टिमिस्ट स्लोगन है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या होता है? ट्रुथ अलोन ट्राइम्स, सत्य की ही विजय होती है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये इन्हीं उपनिषदों में से एक से लिया गया है। क्या आप बता सकते हो उपनिषद कौन सा है जहाँ से लिया गया है? नहीं बता सकते तो फिर तो जानना जरूरी है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। वो लिया गया है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और चूंकि उपनिषद लिटरेरी सेशंस हैं जिनमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कन्वर्सेशंस हैं, एक बहुत ही फेमस कन्वर्सेशन है, वो है यम नचिकेता कन्वर्सेशन। यमराज, द डेटी ऑफ डेथ, एंड नचिकेता, अ क्यूरियस किड। हम लोग कभी बात की क्लासेस में देखेंगे कि ये कन्वर्सेशन किसके बारे में था, या किस हालत में नचिकेता यमराज के पास पहुंचा था। अभी के लिए इतना मान लीजिए कि एक ऐसा बालक है जो कि अपने बाप से परेशान है थोड़ा, और फादर इज मेकिंग सैक्रिफाइसेस एंड पार्टिसिपेटिंग इन द रिचुअल्स, एंड दिस बॉय हैज सम रिजर्वेशंस। फाइनली फादर उसको गुस्से में बोलते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें डोनेट कर दिया किसको? यमराज को। तो ये यमराज के पास पहुंचता है। यमराज देखते हैं अपना रिकॉर्ड, बोलते हैं कि तुम्हारा टाइम तो अभी आया नहीं, तुम वापस चले जाओ। लेकिन ये वापस नहीं आता, शर्त रख देता है कि वापस तभी जाएंगे जबकि आप हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे। उपनिषदों का कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही है कि ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जाएगा जिसमें कि एक नॉलेजेबल और ऑथोरिटी इंटरेक्ट करेगी एक इनोसेंट आदमी से, जो कि वही सवाल पूछेगा जो इस समय के फिलोसफिकल एटमॉस्फेयर में थे। जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, सोल क्या है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। याद करो कि ऋग्वैदिक आर्यंस इन द स्टेज ऑफ नेचुरल पॉलीथीज्म वर हार्डली बोदर्ड अबाउट सच थिंग्स। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस भी कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को ये दर्शाता है कि अब इस तरह के सवालों को न सिर्फ पूछा गया बल्कि उनका आंसर भी सजेस्ट किया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिस कन्वर्सेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड यम नचिकेता कन्वर्सेशन। यम नचिकेता कन्वर्सेशन इन्हीं उपनिषद में से एक में मिलता है जिसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं ये कन्वर्सेशन किस में है? कभी इस कन्वर्सेशन का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं। ये है कठोपनिषद। कठोपनिषद इज वन ऑफ द उपनिषद्स जिसमें कि यम नचिकेता कन्वर्सेशन है, एंड यम नचिकेता कन्वर्सेशन इज अबाउट some philosophical issues, some philosophical questions asked by Nachiketa and answered by Yamraj himself. अब बताओ कि who can give more authentic answer than Yamraj himself about the mysteries of death, about the soul and about what happens after the death. तो इस तरह से उपनिषद में इमेजिनरी भी कह सकते हो, एक्चुअली तो हमें पता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया गया है और उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के फिलोसफिकल इश्यूज पर डिबेट डिस्कशन किया गया है। सो आउट ऑफ उपनिषद्स यू शुड रिमेंबर दिस टू एटलीस्ट, मुंडकोपनिषद एंड कठोपनिषद। मुंडकोपनिषद फॉर दिस स्लोगन सत्यमेव जयते, एंड कठोपनिषद फॉर यम नचिकेता कन्वर्सेशन। इसके साथ ही वैदिक लिटरेचर खत्म हो जाता है। इसीलिए उपनिषद के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है वेदांता, दैट इज एंड ऑफ द वैदिक लिटरेरी ट्रेडिशन। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द एंड ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन, सो द आंसर इज उपनिषद्स, नॉट वेदास। उपनिषद्स मार्क द आंसर ऑफ द लिटरेरी वैदिक लिटरेरी ट्रेडिशन। उसके बाद भी वैदिक नॉलेज के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता रहा, वेदास के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता रहा, बट दे आर पार्ट ऑफ टीकाज, निबंधाज, भाष्याज। याद है ना आपको? तो जैसे अगर आज मैं कुछ लिख दूं ऋग्वेद के ऊपर, तो मेरी राइटिंग वैदिक लिटरेचर का हिस्सा नहीं हो सकती। तो वैदिक लिटरेरी ट्रेडिशन कंटिन्यू करता है इन टर्म्स ऑफ थीम्स। बहुत सारे लेटर वर्क्स में वैदिक थीम्स को रिपीट किया जाता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वैदिक लिटरेरी ट्रेडिशन कब तक चला, तो आंसर इज कि ये उपनिषद तक चला, और उपनिषद के बाद माना जाता है कि वैदिक लिटरेरी ट्रेडिशन केम टू एन एंड।
Is this clear? So this was the Vedic literature. Now the post-Vedic literature. इसका जो टाइम पीरियड है, जैसा कि हम लोगों ने अपनी स्कीम में भी देखा था, इसको हम मान सकते हैं कि 600 BC टू अराउंड 300-200 BC. पोस्ट वैदिक लिटरेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अब इसमें डाइवर्सिटी आएगी. डाइवर्सिटी इसलिए आएगी कि सोसाइटी भी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, इकोनॉमी भी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, और किसी भी वक्त की राइटिंग में उस वक्त के ट्रेड्स रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई. जैसे एक कैटेगरी आती है कि पोस्ट वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें, जो कि इस पीरियड में डेवलप होता है, तो हियर वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड वेदांगाज. इनके लिए वर्ड यूज होता है लिम्स ऑफ द वेदास. वेदों के अंग लिखे गए, लिम्स ऑफ द वेदास. इनका जो मकसद था वो था कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये इंटेलेक्चुअल टूल्स थे, हम कह सकते हैं कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास वी हैव वेदांगास, लिम्स ऑफ द वेदास. अगर हम वेदांगास की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा कि वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज शिक्षा. ये सब आ सकता है, मैचिंग सवाल भी बन सकते हैं. शिक्षा का मतलब है कि हाउ टू प्रोनाउंस. इफ एनी सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन ओरल ट्रांसमिशन, प्रोनाउंसिएशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट. इसलिए कि अगर प्रोनाउंसिएशन का तरीका बदलने लगे तो जाहिर सी बात है कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कुछ ही दिनों में. कहना कुछ और शुरू किया, हो कुछ और गया. तो उच्चारण के या प्रोनाउंसिएशन के बड़े कठोर, बड़े हार्ड रूल्स बनाए गए, ताकि जो कुछ भी ओरली ट्रांसमिट किया जाना हो उसका नेचर ना बदल जाए, उसका मीनिंग ना बदल जाए, उसका सिग्निफिकेंस ना बदल जाए. इसीलिए वी हैव समथिंग दैट इज़ नोन एज शिक्षा. और शिक्षा में आती है क्या, कौन सी चीज़, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन. ठीक है ना. फिर इसके बाद से वेदांगाज में कुछ आता है जिसको कहते हैं छंद. क्योंकि किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए प्रोज फॉर्म से ज़्यादा सुटेबल फॉर्म पोएट्री को माना जाता है. आप पोएट्री आसानी से याद कर लेते हैं, याद भी रहता है. प्रोज याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है. प्रोज में लार्जर थीम तो आपको याद रहेगा, लेकिन शायद डिटेल्स याद ना रह पाए. तो डिटेल्स को अगर पोएट्री में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर डिटेल्स भी याद रहते हैं. इसीलिए शायद जब तक ओरल ट्रेडिशन का दौर रहा तब तक पोएट्री फॉर्म में चीज़ों को ज़्यादा कंपाइल किया गया, ज़्यादा लिखा गया. आज भी चीज़ों को याद रखने के लिए आप उसको पोएट्री में कन्वर्ट कर दें तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं. और एक और चीज़ है पोएट्री में कि अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं, तो जोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. कि इफ समथिंग इज़ फाउंड इन वर्स फॉर्म, इंटरपोलेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट. आप नई चीज़ नहीं ऐड कर सकते, इसलिए कि फिर वो पूरा स्कीम गड़बड़ हो जाएगा. प्रोज में आपको कुछ नहीं करना, प्रोज में आप आसानी से ऐड कर सकते हैं. कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रोज में किसी चीज़ को मिक्स करना आसान है, पोएट्री में मिक्स करना मुश्किल है. इसी वजह से कुछ रूल्स बनाए गए, उसको कहते हैं मीटर, स्केल. जो लोग शायरी करते हैं, पोएट्री करते हैं, वो लोग इससे वाकिफ़ होंगे. फिर एक और वेदांग है जिसको कहते हैं निरुक्ता. निरुक्ता का मतलब होता है एटिमोलॉजी, यानी कि ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि कोई वर्ड किस तरह से एग्जिस्टेंस में आता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है, और वक्त के साथ
उसके मीनिंग किस तरह से बदलते चले जाते हैं। तो उसका भी एक रिकॉर्ड रखने की ज़रूर कोशिश की जानी चाहिए। आजकल के जो लिंग्विस्ट्स हैं, दे टॉक अबाउट व्हाट इज़ नोन एज लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजी, कि वर्ड्स के मतलब वक्त के साथ बदलते रहते हैं, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है वर्ड्स के मतलब भी थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। यहाँ पर एक किताब का नाम भी मिलता है कि निरुक्त का ऑथर कौन है। तो अगर निरुक्त का ऑथर पूछे तो यास्क। So how many limbs of the Vedas we have discussed now? Siksha, that is phonetics or pronunciation. Chand, that is meter. Nirukta, that is etymology. इसके बाद कल्प। अब ये कल्प आने वाले दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। कल्प का मतलब होता है रिचुअल्स, एंड वी नो कि वैदिक लाइफ में रिचुअल्स बढ़ते चले जा रहे थे, तो आने वाले दिनों में किसका सिग्निफिकेंस बढ़ेगा? कल्प का सिग्निफिकेंस बढ़ता चला जाएगा। तो कल्प का लिटरल मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कल्प। तो कल्प का मतलब है रिचुअल्स। तो वैदिक लिटरेचर को सही से समझने के लिए रिचुअल्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप उसे ठीक से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद से you may be knowing something that is known as Vyakaran. Vyakaran is grammar. व्याकरण इज ग्रामर। यहाँ पर जो सबसे पहला व्याकरण माना जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। हालांकि उसका बहुत प्योर रिलीजियस कोनोटेशन तो नहीं है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रेडिशन। आपने नाम सुना होगा अष्टाध्यायी। ऑफ पाणिनि, 4th century BC। 4th century BC में we have a person whose name is Panini. Panini perhaps was from Takshashila. Takshashila later on was to emerge as one of the most significant center of education in India. तो पानिनी ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी। अगर आपसे पूछे कि हु इज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, द आंसर इज पानिनी। और अगर आपसे पूछे कि हु इज द और विच वन इज द फर्स्ट वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर, द आंसर इज अष्टाध्यायी। इसके बाद अब चूंकि ग्रामर की बात हो रही है तो एक और ग्रामेरियन का नाम मिलता है जिसका नाम है कात्यायन। इसकी किताब का नाम उतना मशहूर नहीं है, लेकिन 200 सालों के बाद पाणिनि के अष्टाध्यायी पे एक कमेंट्री लिखी गई, और वो कमेंट्री लिखी है पतंजलि ने। पतंजलि, और उस कमेंट्री का नाम है महाभाष्य। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाष्य का मतलब क्या होता है? कमेंट्री होता है। महाभाष्य एक अपने आप में ही ग्रामर का वर्क है, बट महाभाष्य इज डेराइव्ड फ्रॉम अष्टाध्यायी बिकॉज इट इज कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी। तो चूंकि पार्ट ऑफ द सेम पोस्ट वैदिक पार्ट ऑफ दिस दैट इज व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, तो ये तीन नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अष्टाध्यायी और पाणिनि 4th century BC। कात्यायन ने भी कुछ लिखा, छोड़ दो उसकी किताब का नाम। पतंजलि इज मोर इंपॉर्टेंट, हु रोट महाभाष्य। सो अष्टाध्यायी एंड पतंजलि, अष्टाध्यायी एंड महाभाष्य बोथ आर वर्क्स ऑन संस्कृत ग्रामर। महाभाष्य और पतंजलि इज अ कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। पाणिनि एंड पतंजलि आर सेपरेटेड बाय ऑलमोस्ट 2 centuries. Panini lived in the 4th century BC and Patanjali lived in the 2nd century BC. Patanjali was a contemporary of, you may be knowing, Shunga ruler, Shunga dynasty, post-Mauryan dynasty, पुष्यमित्र शुंगा। कभी नाम सुना है पुष्यमित्र शुंगा का?
सो पुष्यमित्र, शुंगा और पतंजलि दोनों 2nd सेंचुरी BC के माने जाते हैं। सो नाउ हाउ मेनी वेदांगास? शिक्षा, छंद, निरुक्त, कल्प, व्याकरण। 1 2 3 4 5। एक और वेदांग है जिसको कहते हैं ज्योतिष। पीटी के सवाल कैसे बन सकते हैं अंदाजा लगा लीजिए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट पार्ट ऑफ वेदांगास। ठीक है ना? या नहीं तो फिर इसमें से इसको कौन बताता है, ये मीटर को कौन रिफ्लेक्ट करता है, फोनेटिक्स को कौन, इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं आपके। ये सब पीटी के बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ज्योतिष का मतलब है एस्ट्रोलॉजी। बहुत अगर पुराने ज़माने में चले जाएं तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सेपरेट एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। आज के दौर में तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बीच में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमी इज़ मोर साइंटिफिक दैन एस्ट्रोलॉजी। हालांकि एस्ट्रोलॉजी के चैंपियंस मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी बहुत साइंटिफिक डिसिप्लिन है। अब तो इसकी सिस्टमेटिक पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ज्योतिष को हम लोग दोनों से ट्रांसलेट कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी भी लिख सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ज्योतिष इज पार्ट ऑफ वेदांगा और नॉट, तो आंसर इज यस, दैट इज पार्ट ऑफ वेदांगा। सो 6 limbs of the Vedas, and their purpose was to facilitate the understanding of the Vedas. Is that clear? अब ये सारे डिटेल्स में हटा देता हूँ यहाँ से। We have talked about the 6 limbs of the Vedangas. वेदांगास के बाद as part of the post Vedic literature we have B, और यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट्स मिलते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, उपवेदास। ये उपवेदास भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये अलग अलग तरह के स्किल्स इसमें डेवलप होंगे। अगर वेदांगास की बात करें तो अभी भी दे आर प्री ऑक्यूपाइड विथ अंडरस्टैंडिंग द वैदिक टेक्स्ट, लेकिन लाइफ कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, नॉन रिलीजियस आस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी कुछ लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उनके बारे में कुछ लिखा गया, और उनके बारे में जैसे आपने नाम सुना होगा आयुर्वेदा। आयुर्वेद क्या है? पार्ट ऑफ द उपवेदा, एंड आयुर्वेदा डेल्ट विथ मेडिसिन। ठीक है ना? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दवा से बढ़िया है म्यूजिक। तो इस समय सामवेदा का ट्रेडिशन, म्यूजिक की शुरुआत हो चुकी है। वैदिक रिचुअल्स में म्यूजिक की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। सो नाउ म्यूजिक बिकेम अ न्यू काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिस पे एक अलग किताब लिखने की जरूरत पड़ी, और उसको कहा गया गंधर्व वेदा। वैसे वैदिक लिटरेचर में गंधर्वास की चर्चा है, जो कि सेलेशियल बींग्स हैं जिनका रिलेशन म्यूजिक और डांस के साथ है। गंधर्व वेदा, दिस इज अबाउट म्यूजिक। सो नाउ वी हैव 2 उपवेदास, आयुर्वेद एंड गंधर्व वेद। लेकिन आपको मेडिसिन की और म्यूजिक की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि आप इंजर्ड हो गए थे। दैट इज व्हाट धनुर्वेदा। धनुर्वेदा इज अबाउट व्हाट? आर्ट ऑफ आर्चरी, धनुष चलाना। नाउ मिलिट्री टेक्स्ट, समथिंग अबाउट वारफेयर। सो धनुर्वेदा वाज अबाउट आर्चरी और वारफेयर। नाम से ही जाहिर है, यहाँ पर तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान होगा। गंधर्व, आयुर्वेद, और यहीं पर हमें एक और वेद दिखता है जिसको हम कहते हैं शिल्प वेदा। क्योंकि सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी, रिलेटिवली परमानेंट हैबिटेशनल स्ट्रक्चर्स बनने लगे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। ठीक है ना?
सेक्रीफाइशियल फायर के साथ साथ, सेक्रीफाइशियल पिट के साथ साथ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी बनने शुरू होते हैं। तो शिल्प वेद का रिलेशन, वैसे तो शिल्प एक जनरल टर्म है जो किसी भी तरह के आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ एज पार्ट ऑफ उपवेदास शिल्प के लिए सीधे सीधे आर्किटेक्चर वर्ड का इस्तेमाल मिलता है। हालांकि वैदिक टाइम का आर्किटेक्चर हमें पता नहीं चल पाता, ना ही आर्किटेक्चरल रिमेन्स हमें मिलते हैं, बट एज पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज शिल्प वेदा एंड दैट इज अबाउट आर्किटेक्चर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? सो इन द पोस्ट वैदिक रिलीजियस लिटरेचर वी हैव ए वेदांगास वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी हैव उपवेदास। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। अब तीसरी कैटेगरी जो डेवलप हुई दैट इज पार्ट ऑफ द पोस्ट वैदिक लिटरेचर, उसको कहते हैं कल्प सूत्रास। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि कल्प मीन्स रिचुअल्स, पार्ट ऑफ द वेदांगास, and kalp is going to be more important because in the Vedic religious life rituals were becoming more and more important day by day. तो जो रिचुअल्स का बढ़ता हुआ सिग्निफिकेंस है वो लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होगा, और जब वो लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ टेक्स्ट लिखे गए जिनको क्या कहते हैं? कल्प सूत्रास कहते हैं। इसको कभी कभी सूत्रा लिटरेचर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सूत्रा लिटरेचर। सूत्र का मतलब क्या है? अभी के दौर में आपको समझाना बहुत आसान है कि सूत्र का मतलब क्या है, क्योंकि आप में से सभी लोग सूत्र ही ढूंढ रहे हैं, फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। क्या करने का? पीटी क्वालिफाई करने का। तो सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। सूत्र वर्ड का इस्तेमाल आज भी हम लोग करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं। तो यहाँ पर ना वन लाइन स्टेटमेंट, एक लाइन का कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें कि कोई पीस ऑफ विजडम हो, उसको कंडेंस किया गया हो। बहुत इलाबोरेट नहीं, पोएट्री भी नहीं है यहाँ पे टेक्स्ट भी नहीं है, ये दोनों के बीच क्या है? ये बहुत ही शॉर्ट टेक्स्ट हैं, वन लाइन स्टेटमेंट, कुछ इस तरह से। उसी को क्या कहा गया है? सूत्र कहा जाता है। और वी हैव सूत्रा लिटरेचर and these sutras are mainly about kalpa, that is rituals, because rituals are going to be more and more important. तो यहाँ पर भी कुछ हमें चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे सूत्रा लिटरेचर में मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर आगे बढ़ा के, we have sutras known as श्रौत सूत्रा। श्रौत सूत्रा का मतलब था, क्योंकि सेक्रीफाइसेस इंपॉर्टेंट हो रहे थे उनकी लाइफ में, तो इसमें किसको हैंडल किया गया है? पब्लिक सैक्रिफाइसेस। फिर इसी में से निकलेंगे जिनको कहा गया है गृह सूत्रास। इनका रिलेशन किसके साथ है? डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस। फिर इसी में से निकलेंगे जिसको कहते हैं सुलभ सूत्रास। ये भी फॉर्मूला है। ये क्या बनाने का फॉर्मूला है? तो जो यज्ञ करते हैं तो वेदी की जरूरत होती है, फायर पिट या ऑल्टार की जरूरत होती है, तो उसके लिए मेजरमेंट की जरूरत होती है। सो दैट वाज अबाउट मेजरमेंट। कुछ लोग मानते हैं कि जियोमेट्री, इंडियन जियोमेट्री का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? सुलभ सूत्रास से होगा। लेकिन इस बीच में एक और डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप नोटिस करें तो yesterday we talked about the concept of varna ashram dharma, that is fourfold division of society and 4 stages of life, and we have duties related to the 4 social classes, social orders, and also related to the 4 stages of life, something that came to be known as the varnashram dharma, that is varna plus ashrama. अब ये 4 वर्ना हो कि 5 वर्ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है वो ये है कि धर्म का आइडिया डेवलप होता चला आ रहा था कि व्हाट इज धर्मा। रिचुअल्स तो अभी इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अब सोशियो कल्चरल लाइफ और कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। इंटरेक्शन विद गॉड इज इंपॉर्टेंट,
उसके लिए तो रिचुअल्स हैं, उसके लिए बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन नाउ योर इंटरेक्शन इन सोसाइटी विथ अदर सोशल ग्रुप इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. योर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अर्थ एंड earthly life, that is also going to be important. तो सब कुछ रिलीजियस गार्ब में प्रेजेंट किया गया, लेकिन उससे भी जुड़े रूल्स बनाए गए वन लाइन स्टेटमेंट वाले, उनको कहते हैं धर्म सूत्र. ठीक है ना. धर्म सूत्र ये किसको लेकर है? तो दैट इज कंडक्ट, एप्रोप्रिएट कंडक्ट, बिहेवियर. धर्म सम्मत बिहेवियर की बात आज भी हम लोग करते हैं. So that is conduct. Appropriate conduct is called dharma. So this is how in the post-Vedic literature that developed from 600 BC to around 200 BC. We have three major segments. We have 6 Vedangas, we have 4 Upvedas, and we have 4 Kalp Sutras. Shraut Sutra, Griha Sutra, Sulva Sutra and Dharma Sutra. Dharma Sutra is about conduct, that is righteous conduct, the conduct which is justified as per your varna status, as per your ashrama status. उससे जुड़े रूल्स भी बनाए गए कि किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. इन सब पे पीटी के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि इसमें से किसका रिलेशन कंडक्ट के साथ है, किसका रिलेशन मेजरमेंट के साथ है, किसका रिलेशन डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस के साथ है, किसका रिलेशन पब्लिक सेक्रीफाइसेस के साथ है, या कुछ नहीं तो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कल्प सूत्र. अब इसमें से 3 देकर एक उधर से पूछ देगा, शिक्षा को जोड़ देगा, फोनेटिक्स को जोड़ देगा, और पूछ देगा कि विच वन इज पार्ट ऑफ और नॉट अ पार्ट ऑफ द कल्प सूत्र. आप समझ सकते हैं ना मैनिपुलेशन किस तरह से पॉसिबल है. मेरे ख्याल से पीटी के क्वेश्चन से इस स्टेज पर आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे. इज दैट क्लियर? दिस व्हाट वी कैन से दी पोस्ट वैदिक लिटरेचर. इसके बाद से हम लोग पोस्ट वैदिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ और वर्ड का इस्तेमाल होने लगता है. अब बताइए कि आर्यास की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट था? प्रेयर्स इंपॉर्टेंट रहे थे कभी, तो वी हैव ऋग्वेदा. रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हो गए, तो वी हैव ब्राह्मणास, एंड देन वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज कल्प सूत्रा. लेकिन लेटर वैदिक तक आते आते द आइडिया ऑफ धर्मा वाज आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट. तो अब जो कुछ भी लिखा गया वो उसका एक मेजर पार्ट किससे रिलेटेड था? धर्मा से रिलेटेड था, दैट इज राइटियस कंडक्ट से रिलेटेड था, उसके एक्सप्लेनेशन से था. तो अब एक नया दौर आता है, उसको कहते हैं द टाइम ऑफ धर्म शास्त्रास. धर्मशास्त्रास. धर्मशास्त्रास वर बेसिकली लॉ बुक्स. कानून बनने शुरू हुए, अब लॉ बनाने शुरू हुए, यानी कि ऋग वैदिक हिम्स एंड प्रेयर्स टू नाउ धर्मशास्त्रास. ये जो लिटरेरी जर्नी है दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक जर्नी ऑफ द वैदिक पीपल. ठीक है ना. तो धर्मशास्त्रास में एनीथिंग दैट वाज अबाउट ह्यूमन कंडक्ट, about human behavior, that came to be included. We can say कि anything that is written on the issue of dharma is part of the dharma shastra. ये ठीक वैसे ही है कि anything written on the issue of artha is part of artha shastra, and anything written on the subject of samaj is samaj shastra, and anything written on the subject of rajneet is rajneet shastra. ये समझ गए? अब जब धर्मशास्त्र की बात हुई तो याद करो कि इससे पहले भी कुछ लिखा जा चुका था धर्म के ऊपर, याद है ना. कल्प सूत्रा में से धर्म सूत्रा थे या नहीं थे? थे ना. अभी इसके ठीक पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अब ये हम लोग बदल देंगे. इसके पार्ट के तौर पे डिस्कस किया था कि वी हैव 4 कल्प सूत्रास, उसमें से धर्म सूत्रास भी थे, और उनका भी सब्जेक्ट मैटर क्या था? धर्म ही था. तो जब धर्मशास्त्र लिटरेचर को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये जो ऊपर वाले थे इनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं, यानी कि जो पुराने धर्म सूत्रास हैं वो भी किसके हिस्सा हो गए? धर्मशास्त्र के हिस्सा हो गए. द ओनली डिफरेंस इज कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ सूत्रा. सूत्रा का मतलब होता है थ्रेड, वन लाइन एक्सप्रेशन, फॉर्मूला. तो जो कुछ भी धर्म के ऊपर लिखा गया वो फॉर्मूला के शेप में नहीं था,
जो फॉर्मूला के शेप में था उसको क्या कहेंगे, धर्मसूत्रा कहेंगे, और जो ऐसे लिखा गया वो किसका हिस्सा हो गया, धर्मशास्त्र का। क्योंकि इनका भी सब्जेक्ट क्या है, धर्म है, तो ये भी किसके हिस्सा हो गए, धर्मशास्त्र के। तो वी कैन से कि धर्मशास्त्र इज अ लार्जर कैटेगरी विच ऑल्सो इंक्लूड्स धर्मसूत्रास। इन दो वर्ड्स को लेकर हमेशा कंफ्यूजन होता रहता है। अब जैसे कुछ पुराने धर्मशास्त्र थे, उसमें सबसे पुराना धर्मशास्त्र माना जाता है गौतम का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट धर्मसूत्रा, गौतम, ठीक है ना। उसके बाद माना जाता है, एक नाम आपने सुना होगा अपाष्टम्ब, गौतम अपाष्टम्ब। एक और नाम आपने सुना होगा बौधायन। ये वो ऑथर्स थे जिन्होंने सूत्रा फॉर्म में धर्मा के ऊपर लिखा था किसी जमाने में, ठीक है। सो गौतम, अपाष्टम्ब, बौधायन, ये कुछ फेमस लोग हैं। इसमें सबसे पुराने गौतम है, बस गौतम को भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला था। ये जो कल्पसूत्राज में से, कल्पसूत्रा में से एक जो कौन से सूत्रास थे, धर्म सूत्रा, इनको यहाँ ला तो दिया आपने, लेकिन धर्म के बारे में और चीज़ें लिखी जाती रहीं और रूल्स बनते रहे, क्योंकि सोसाइटी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डे बाई डे। तो अब जो दूसरी कैटेगरी यहाँ पे आती है, उसी को कहते हैं स्मृतिज। स्मृति मतलब रिटन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। जनरली स्मृतिज के लिए हम लोग ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन सा वाला, धर्मशास्त्र। आप समझ सकते हैं कि धर्मशास्त्र वर्ड का इस्तेमाल यहाँ हो सकता है, धर्मशास्त्र वर्ड का इस्तेमाल इनके लिए भी हो सकता है, लेकिन धर्मसूत्र वर्ड का इस्तेमाल इनके लिए नहीं होगा, बिकॉज स्मृतिज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड और सूत्रा। सूत्रा का एक मतलब होता है थ्रेड, THREAD। तो जो थ्रेड फॉर्म में नहीं है उसको हम धर्मसूत्रा नहीं कहेंगे, लेकिन धर्मसूत्रा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र, स्मृतिज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। अब यहीं पर कुछ नाम बड़े मशहूर हो जाते हैं। जैसे अगर स्मृतिज की बात करें तो यहाँ मैं लेकर आ जाता हूँ, आपने मनु का नाम सुना होगा, यही है मनु स्मृति, जिसको मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनु स्मृति या फिर टेक्स्ट है, और मेरे ख्याल से आज की पॉलिटिक्स को समझते हुए आप इसके बारे में भी जानते होंगे। मनुस्मृति इज ऑल्सो नोन एज व्हाट वी कैन से मानव धर्म शास्त्र। ये सबसे पुराना है। तो धर्मसूत्रा में सबसे पुराना कौन हो गया, गौतम। स्मृति में सबसे पुराना कौन हो गया, मनु। इसका टाइम लगभग 2nd सेंचुरी BC के आसपास या अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी का माना जाता है। इसके बाद से और भी बहुत सारे लॉ बुक्स लिखे गए। जैसे एक और नाम आपने सुना होगा, यज्ञवाल्क्य। यज्ञवाल्क्य नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन। कात्यायन स्मृति को शायद सबसे बाद का माना जाता है, एक बार कंफर्म भी कर लेना आप, जिसको अराउंड 9th सेंचुरी AD में कंपाइल किया गया, कात्यायन। So Manu is the oldest, Katyayana is the latest, and we have around 1000 years in which the Hindu religious laws and laws of socio-religious conduct took shape. बाद में चलकर मॉडर्न टाइम में जब लॉ बुक्स का कंपाइलेशन होगा तो इन सबको ट्रांसलेट किया जाएगा, इन सबको समझने की कोशिश की जाएगी, और आज भी हमारे लीगल लॉ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे ट्रेडिशन और कस्टम के ऊपर बेस्ड है।
इस तरह से हम लोग किस 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 लेवल तक पहुंच जाते हैं? हम लोग पहुंच जाते हैं 9th सेंचुरी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच में जब ये सब कुछ चल रहा होता है, लॉ लिखा जा रहा होता है और धर्मशास्त्राज कंपाइल हो रहे होते हैं, उस दौरान और भी डेवलपमेंट्स होते हैं। ये लगभग 1000 ईयर्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान माना जाता है, एग्जैक्टली टाइम तो डिसाइड करना मुश्किल है, कि वी हैव द रामायण एंड सेकेंड द महाभारत। कुछ लोग कहते हैं कि एक वक्त में लिखे गए, कुछ लोग कहते हैं कि इवॉल्व टेक्स्ट है, धीरे धीरे इनका इवोल्यूशन हुआ है। रामायण ट्रेडिशनली किसके साथ जुड़ा गया है? वाल्मीकि, इसी का वर्जन था रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने मेडिवल टाइम में लिखा। और महाभारत वेद व्यास, नाम सुना होगा आपने। लेकिन ये लोग, ऐसा माना जाता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे नई चीज़ें, नए थीम्स इनमें जोड़े जाते रहे और धीरे धीरे जो नंबर है, स्टेंजाज हैं, वो बढ़ते चले गए। इनको कहा जाता है द एपिक्स। These are the epics. 2 epics are there in the Hindu religious tradition. Epic का मतलब होता है a very big poem, एक बहुत बड़ी कविता। रामायण का जो थीम है, महाभारत का जो थीम है, ये हम सब वाकिफ़ हैं। रामायण में अगर हम देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्या वर्सेस नॉन आर्या का कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर भी आर्या और नॉन आर्या का कॉपरेशन भी दिखाई देता है। Like the battle of 10 kings. So Lord Rama and his army, Lord Rama representing the world, Aryan, but his army representing what? The non-Aryan world. और प्लस रावण और उसके साथ जो राक्षस हैं, आखिर ये राक्षस कौन लोग थे? तो कुछ लोग मानते हैं कि हम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बैड लाइट में प्रेजेंट करते हैं। जैसे तुम्हारा और मेरा अभी झगड़ा हो जाए तो तुम बोलोगे कि ये मास्टर नहीं है, राक्षस है, राक्षस, कुछ इस तरह से। सो कंडक्ट डिटरमिन्स कि आपको कैसी आइडेंटिटी दी जाती है। एनी इविल डूअर इज कॉल्ड राक्षस इन आवर कल्चर। या नहीं तो फिर वो लोग जो हमसे पावरलेस हैं, उनके लिए भी हम लोग इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी हो, इसमें आर्यन और नॉन आर्यन का कन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट होता है। स्टेट फॉर्मेशन दिखाई देता है, फैमिली लाइफ दिखाई देती है, फैमिली लाइफ से जुड़े नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ दिखाई देते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं? रामायण से। अगर कहे कि रामायण से हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे, हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मेन एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होगा कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसलिए इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन महाभारत में माना जाता है कि इट वॉज पार्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्याज एंड आर्याज। अब देखो कि कौरव भी और पांडव भी दोनों एक ही फैमिली से आते थे और कौरव और पांडव की सेना में, आर्मी में राक्षसों की बात नहीं होती है। महाभारत में राक्षस नहीं लड़े थे मेरे ख्याल से, है ना? या राक्षसों के खिलाफ ही लड़ाई नहीं थी। तो आर्यन कन्फ्लिक्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द महाभारत। इसी महाभारत का एक पार्ट है, सेगमेंट है, जिसको भागवत गीता के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कुछ लोग कहते हैं कि लेटर एडिशन है, जिसमें कि महाभारत के वार के प्लॉट पर कुछ मोरल लॉज को, कुछ मोरल पोजीशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। एग्जैक्ट टाइम वी डोंट नो, लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट जो था वो लेटर वैदिक का कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, क्योंकि इनमें जो बातें हैं वो बातें जैसे ये स्टेट फॉर्मेशन, फैमिली नॉर्म्स, इस तरह की चीज़ें जो थी वो लेटर वैदिक पीरियड में ही डेवलप हुई थी। तो इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेटर वैदिक का हो सकता हो कि और बाद में लिखा गया हो, क्योंकि हम बाद में जीते समय अगर हम यहाँ जी रहे हैं इस जगह पे, तो हम इस जगह के बारे में लिख सकते हैं, इसकी यादें अभी होंगी हमारे मन में। अब यहाँ लिख दिया जाए तो अगर टेक्स्ट का टाइम अगर आप पता लगा भी लें कि ये टाइम है, तो उसमें जो थीम रिफ्लेक्टेड है वो ओल्डर हो सकता है। ओल्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे आज अगर मैं लिखूं चाणक्य के बारे में, और आज से 1000 ईयर के बाद अगर मेरी किताब कोई ढूंढ ले, तो वो चाणक्य के बारे में है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि किताब उतनी पुरानी है जितनी कि चाणक्य, ये किताब उतनी पुरानी है जितनी कि मौर्यास। ये 21st सेंचुरी में लिखी गई, उसे मैंने लिखी। इट इज़ अबाउट द मौर्यास, इट इज़ अबाउट द चाणक्य, लेकिन उस एज की किताब नहीं है। तो कभी कभी थीमेटिकली बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी को ट्रेस करना। लेकिन अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट इज लेटर वैदिक, यानी कि लेटर वैदिक में जिस तरह के आइडियाज़, जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो गए थे, उसी तरह के आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस वी फाइंड एज पार्ट ऑफ द बोथ द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत। जब ये डेवलप हो रहे थे, मे बी इट टुक अराउंड 1000 ईयर्स, द सेम दैट इज़ फ्रॉम 2nd सेंचुरी टू 9th सेंचुरी, जिसमें कि लॉ बुक्स भी डेवलप हो रहे थे। उसी ज़माने में वी हैव अनदर वी कॉल पुरानाज। इनका भी एक क्रोनोलॉजी नहीं है। पुरानाज को हम लोग मानते हैं कि दे आर, ये अपने आप में ही क्वेश्चन हो सकता है, दे आर सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इसलिए कि इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन नहीं था। हम लोगों ने सोशियो कल्चरल हिस्ट्री तो लिख ली दूसरे तरीके से, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग नहीं लिख पाए। सो कल्हन्स राज तरंगिनी दैट वाज रिटन टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द 12th century and the book deals with history of Kashmir is supposed to be the first book on history. इंडिया में अगर पहला कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिसको कि हम हिस्ट्री का टेक्स्ट मान सकते हैं, जो हिस्ट्री लिखा गया, वो कल्हन की राज तरंगिनी है। राज तरंगिनी डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। लेकिन अगर इंडियन ट्रेडिशनल सोर्सेज की बात करें तो उनमें से पुरानाज को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट मान लेते हैं, दो वजहों से। एक तो इनमें क्या है, क्रोनोलॉजी है, और दूसरा इनमें थोड़ी सी ये भी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। बट क्रोनोलॉजी में एक कन्फ्यूज़न फिर हो जाता है, स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ना फ्यूचर टेंस में चीज़ों को बताया गया है, शायद उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन इतना एग्जैक्ट है कि ऐसा लगता है कि जब डेवलपमेंट्स हो गए उसके बाद उनके बारे में लिखा गया। ठीक है, जैसे कि अगर इस तरह से लिखा जाए कि तब वो आएगा, पीटी की क्लासेस लेगा, और फिर स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर वो अधिकारी बन जाएंगे। ये क्या है? मान लो कि ऐसा सच में हो जाए तो फिर क्या होगा? चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इतना एग्जैक्ट है तो लोग यही मानेंगे ना कि ये पहले से इतना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। इतना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तभी होगा, या लैंग्वेज प्रिडिक्टिव है, थीम पुराना है, चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन उसको फ्यूचर टेंस में लिखा जा रहा है ताकि उन चीज़ों की ऑथेंटिसिटी बढ़ सके। इज दैट क्लियर? So because of these two reasons, reflection of chronology and reflection of political history, Puranas in our culture are known as semi-historical text. ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब पुरानाज में एक चीज़ और आप जान लो कि पुरानाज के थीम्स पर भी सवाल बन सकते हैं कि पुरानाज में कौन से थीम्स हैं। थीम्स ऑफ द पुरानाज, तो बहुत सारे पुरानाज हैं, 118, लेकिन इसमें से कुछ महापुराण कहलाते हैं। सो वी हैव 18 महापुरानाज। उनकी संख्या कितनी है? 18 है तो 100 से ज़्यादा, लेकिन आउट ऑफ देम 18 आर एक्सेप्टेड एज महापुराण्स। अक्सर उन्हीं की बात होती है, और उनमें से भी हिस्टोरिकल लिटरेचर में सबकी बात नहीं होती है। 2-3 ही ऐसे हैं जिसमें कि पॉलिटिकल हिस्ट्री और सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी वेल रिफ्लेक्टेड होती है। लेकिन फिर भी थीम्स ऑफ द पुरानाज कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि पुरानाज डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो एक तो यहाँ पर पुरानाज में हमें चीज़ मिलती है जिसको कहते हैं सर्गा। सर्गा का मतलब है क्रिएशन, लेकिन जब भी क्रिएशन होता है तो दुनिया क्या होती है? मिट जाती है और फिर से बनती है। उसको कहा गया है प्रति सर्गा, दैट इज रिक्रिएशन। और इस क्रिएशन और रिक्रिएशन के साथ कुछ लीजेंड्स जुड़े हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, जल विप्लव, पलावन हो जाना, पानी में डूब जाना। अब्राहमिक रिलीजन में भी इस तरह का लीजेंड है कि एक बड़ा नाव बनाकर लोगों को बचा लिया गया। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ बात होती है मनु की, कि दुनिया कई बार बनी, कई बार गई, लेकिन जब भी शुरुआत हुई तो किसके साथ हुई? मनु के साथ हुई।
तो इसलिए उन एज को कहते हैं मनवंतराज। क्या कहते हैं? तो व्हाट वर मनवंतराज? सो दीज आर एजेस ऑफ डिफरेंट मनुज, जो कि क्रिएशन या सृष्टि के शुरुआत में सबसे पहले पुरुष या सबसे पहले एजेंसी माने जाते हैं, जिन्हीं से कि सृष्टि आगे बढ़ती है। शायद यही वजह थी कि जो पहला लॉ बुक लिखा गया उसका नाम रख दिया गया मनु स्मृति। तो ये मनु कौन थे जिन्होंने लिखा? माना जाता है हिस्टोरिकली कि अराउंड 1st सेंचुरी BC, लेकिन बिलीफ यह है कि ये मनु वही थे हु वाज द फर्स्ट मैन। इसलिए इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है, अगर उसी ने किसी लॉ को लिख दिया है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इस तरह का बिलीफ उन लोगों का हो सकता है जिसको मनु स्मृति में श्रद्धा हो। इज दैट क्लियर? सो हियर वी हैव मनवंतरास, एजेस ऑफ डिफरेंट मनुज। चौथा थीम है यहां पर, उसको हम लोग कहते हैं वंशा। क्या कहते हैं? वंशा। वंश का मतलब होता है लीनिएज। वंश में यहां पर lineages of different deities, their origin, their lineages। कौन सा देवता किस देवता के साथ किस तरह से रिलेटेड है, किसका टाइम कौन सा है, एरिया कौन सा है, उसके साथ रिचुअल्स कौन है, पिलग्रिमेज सेंटर्स कौन है, इंपॉर्टेंट रिचुअल्स कौन है, किसकी पूजा किस तरह से होती है। ऑल दिस डिटेल्स आर पार्ट ऑफ द Vansa, that is deities, their origin, their lineages, rituals, pilgrimage centers, all these things are part of the Vansa। यहाँ तक आप देखिए कि रिलीजियस थीम है, लेकिन मैंने कहा था कि पुरानाज में पॉलिटिकल थीम भी जुड़ जाता है, जो कि उनके हिस्टोरिकल वैल्यू को बढ़ा देता है। यहाँ पर जो पांचवा है वो इसी से रिलेटेड है, उसको कहते हैं वंशानुचरिता। चरिता वर्ड, वंशानुचरित। वंशानुचरित में क्या है? रूलर्स एंड देयर lineages, rulers and their lineages। एंशियंट डायनेस्टीज बिगिनिंग विद द हर्यका डायनेस्टी, एंशियंट में पढ़ा होगा आपने, द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ द मगध। हर्यका से लेके गुप्ता एज तक जितनी भी डायनेस्टीज हैं, उसमें से जो भी मेजर डायनेस्टीज हैं, सबकी चर्चा यहाँ पे मिलती है। तो हर्यका मेंशन्ड, नंदा मेंशन्ड, शिशुनागा मेंशन्ड, मौर्याज मेंशन्ड। विथ मौर्याज पुरानाज डज नॉट रिफ्लेक्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। मौर्याज के लो सोशल ओरिजिन को दिखाया गया है, हालांकि शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंगा को प्रेज किया गया है। आप समझ सकते हैं कि मौर्याज डिड नॉट suppress Brahmanism, but also they did not preach Brahmanism and they did not try to base their legitimacy on the basis of the Brahminical rituals। और ऐसा नहीं कि सारे पुरानाज में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। 2-3 पुरानाज हैं जो खास तौर से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। ये 3 खास तौर से हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। अब क्वेश्चंस वही बनेंगे, स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा जा सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब स्पेसिफिक आइटम पे हम लोग नहीं जाएंगे कि किसमें क्या है। मत्स्य का मतलब होता है फिश, मछली। हाँ, मत्स्य पुराण वही सेम मतलब है उसका। वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये कुछ पुरानाज ऐसे हैं जहां पर कि हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के फ्रेगमेंट्स ज्यादा मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये एक लिस्ट है। इसके बाद से जो हिंदू रिलीजियस लिटरेचर में चीजें मिलती हैं, उनमें आपने देखा था कि शंकराचार्य ने टीका लिखी किसके ऊपर? ब्रह्मसूत्र के ऊपर। इस तरह से लोग लिखते चले गए, तो फिर उन्हीं के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टीकाज, भाष्याज, निबंधाज। बस एक ही अंतर है कि टीकाज छोटे होते हैं, कमेंट्री कहते हैं, छोटा कमेंट। भाष्याज उनसे बड़े होते हैं,
निबंधाज और बड़े होते और एक्सप्लेनेटरी होते, लेकिन नेचर इन तीनों का, टीका, भाष्य और निबंधा का, एक ही जैसा है। क्लियर? सो दीज आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द हिंदू रिलीजियस लिटरेचर। अगर हम हेट्रोडॉक्स लिटरेचर की बात करें तो इनका एक बेनिफिट यह है कि वी हैव नॉन ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव्स। क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन हो या पुरानिक ट्रेडिशन हो, वी हैव डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास, so mostly they reflect what is known as the Brahminical perspective. Heterodox sects are particularly important for throwing light on non-Brahminical perspectives. अब इसमें बुद्धा के बारे में हम सबको पता है, बुद्धिज्म के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया। So when Buddha died, even in Buddhism we do not find the tradition of writing in the very beginning. जब बुद्ध थे तो स्क्रिप्ट थी या नहीं थी, that can be conjectural. इसलिए कि पहला डेफिनेट एविडेंस स्क्रिप्ट का हमें तब मिलता है when we have the Ashokan edicts, and that was the Brahmi script, later on deciphered by James Prinsep in the year 1837. लेकिन राइटिंग के डेवलपमेंट के लिए जो हिस्टोरिकल कंडीशंस चाहिए, वी नो द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे बिना स्टेट फॉर्मेशन एक पीजेंट सोसाइटी में रिकॉर्ड कीपिंग उतना ज़रूरी नहीं होता। एक पीजेंट उंगलियों पे काउंट कर सकता है कि पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ था, उसको डे टू डे डेटा मेंटेन नहीं करना। तो जब तक एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी, लिखने की, रिकॉर्ड कीपिंग की उतनी ज़रूरत नहीं थी। बट द मोमेंट वी हैव अर्बनाइजेशन, सो इन इंडिया ऑफ कोर्स वी हैव अर्बनाइजेशन अराउंड 6th century BC। तो अर्बनाइजेशन में क्या होता है, ट्रेड, कॉमर्स, आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, तो उनको तो रिकॉर्ड कीपिंग डे टू डे लाइफ में करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। उसी तरह से जब स्टेट फॉर्मेशन होगा तो स्टेट को भी रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत पड़ेगी। सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इंडिया में स्क्रिप्ट की जरूरत डेवलप हो गई थी अराउंड 6th century BC। इट टुक अराउंड 300 years फॉर द स्क्रिप्ट टू टेक डेफिनिट शेप, और पहली बार डेफिनिट शेप में हमें वो अशोकन एडिक्ट्स में मिलती हैं। अशोकन एडिक्ट में 4 तरह के स्क्रिप्ट मिलने लगती हैं। ब्राह्मी, जिसमें सबसे ज़्यादा लिखा गया, आरामाइक है, खरोष्ठी है और ग्रीक है। इसमें से 2 फॉरेन स्क्रिप्ट है। मेगास्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और मेगास्थनीज के डिस्क्रिप्शन का एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट मेजर पहलू यह है कि मेगास्थनीज सेज कि इंडियंस डोंट नो हाउ टू राइट। लेकिन मेगास्थनीज के जाते ही लगभग 50 साल के बाद हमें क्या दिखाई देने लगता है, वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट इन अशोकन एडिक्ट्स। सो हाउ टू एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्स। कुछ लोग कहते हैं कि मेगास्थनीज खुद लिख रहा था, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि दूसरे भी लिख रहे हैं, या फिर 300 years एक सफिशिएंट टाइम लगता है। तो स्क्रिप्ट कब था कब नहीं था, ये कंट्रोवर्शियल मसला है, उसकी तरफ हम लोग अभी नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना मानिए कि व्हेन बुद्धा वाज देयर, तो बुद्धा के समय में भी चीजें शायद लिखी नहीं जा रही थी। तो व्हेन बुद्धा डाइड, वी हैव द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धा डाइड at Kushinagar, that is in eastern UP. And who was the ruler? Ajatasattu. Or during the reign of, not under. During the reign of Ajatasattu, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अजातशत्रु बुद्ध का डिसाइपल भी था, बाप बेटा दोनों, अजातशत्रु एंड बिंबिसार। बुद्ध was preaching non-violence and none of them were non-violent. Both are known for their violent credentials. अजातशत्रु ने तो अपने मामा लोगों को भी नहीं छोड़ा, और अजातशत्रु की हिम्मत देखिए, बुद्ध के पास पहुंच गया पूछने के लिए कि लड़ाई कैसे जीती जाए लिच्छवियों के खिलाफ। वो खुद गया था या अपने किसी मंत्री को भेजा था, और बुद्ध ने बताया भी था, बहुत डायरेक्टली नहीं बताया था, इनडायरेक्टली बताया था। यानी कि प्रीचिंग एक तरफ, पॉलिटिक्स एक तरफ, वार एक तरफ। डोंट फॉरगेट कि बुद्धा वाज आल्सो क्षत्रिय। तो फर्स्ट बुद्धा डाइड, and after death of Buddha we have a council which is known as first Buddhist council that took place at Rajgir. And who was the ruler during this time? Ajatasattu. अजातशत्रु ने ही इस काउंसिल को पैटर्नाइज भी किया, क्योंकि अजातशत्रु हैड वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद बुद्धा। अब इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में राजगीर में जो हुआ, बुलाया गया एक ऐसे बंदे को जो बुद्ध के साथ हमेशा रहता था,
नाम था आनंदा। मकसद ये था कि आनंद से पूछा जाए कि भाई आनंद तुम बताओ कि बुद्धा ने क्या क्या कहा है, बुद्धा की प्रीचिंग क्या है। क्योंकि बुद्धा की प्रीचिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से बता सकता है जो बुद्ध के साथ हमेशा रहा हो। और आनंद वाज द पर्सन हु वाज आल्सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ बुद्धा एट कुशीनगर। बुद्धा का लास्ट मैसेज भी आनंद ने ही रिसीव किया था, जिसमें बुद्धा ने कहा था कि टाइम इज शॉर्ट, स्ट्राइव हार्ड। बुद्ध ने उस वक्त भी शायद अपने आप को एक डेटी या देवता के तौर पे नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने आनंदा को इस बात के लिए एश्योर नहीं किया कि आनंदा डोंट वरी, मैं हूँ, मैं देख लूँगा तुम्हारे निर्वाण का मसला। उन्होंने आनंद से ही कहा कि कोशिश करो। तो उसी आनंद को बुलाया गया और आनंद से कहा गया कि बता दो भाई बुद्ध ने क्या कहा था। तो आनंद ने बताया और उसको लिखा गया। आनंद के कहने पर जो लिखा गया उसको कहते हैं सुत्त पीटका। सुत्त पीटका में वी हैव a version of Buddhism or teachings of Buddhism as reproduced by Ananda, the most famous disciple of Buddha at Rajgir, Sutta Pitak. Sutta Pitak में हमें क्या मिलता है? टीचिंग्स और preachings of Buddha as recollected and reproduced by his most famous disciple Ananda. और आनंद ने जो किया, जो बताया, उससे पूरा बक्सा भर गया। पीटक का मतलब होता है बॉक्स, पेटी, पीटक। इसके 4 कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एक है दीर्घ निकाया। दीर्घ इज बड़ा, निकाया इज पार्ट, सो निकाया पार्ट ऑफ सुत्त पीटका। दूसरा है मध्यम निकाया। अगेन निकाया इज पार्ट, मध्यम का मतलब क्या होता है? मिडिल। फिर एक और है इसमें संयुक्त निकाया, दैट इज ज्वाइंट। अब तो कोई खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है इन सब का, पीटी के लिए, हमारे जीएसपीटी के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको कहा गया अंगुत्तर निकाया। वाई अंगुत्तर निकाया इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी हैव references to 16 Mahajanpadas. 16 Mahajanpadas which developed around 6th century BC. उनका रेफरेंस कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, विच इज पार्ट ऑफ सुत्त पीटका। ठीक है ना? और फिर बाद में एक निकाय और जोड़ा गया जिसको कहते हैं खुद्दक निकाया। खुद्दक का मतलब होता है स्मॉल, फ्रेगमेंट्स, मिसलेनियस। खुद्दक निकाया हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनमें वी हैव दी जातका स्टोरीज। जातका स्टोरीज आर स्टोरीज रिलेटेड टू प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा। So in which of the following we have compilation of the Jataka stories? If they ask question Nikaya wise, then it is Khudak Nikaya. If they ask question Pitaka wise, then Sutta Pitak. Clear? Then उसी असेंबली में जिसमें आनंद बता रहा था कि बुद्ध ने क्या, तो हमने क्या लिखा? आनंदा एंड सुत्त पीटक। इसके डिटेल्स देखें। उसी में एक और बुद्ध का डिसाइपल था जिसका नाम था उपाली। उपाली से कहा गया कि भाई उपाली तुम भी कुछ बता दो। तो उपाली ने कहा कि मैं क्या बताऊं, चलो मैं भी कुछ बताता हूं। तो उसने जो बताया उसके बेसिस पर कंपाइलेशन हुआ विनय पीटका का, जिसमें रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन, विनय का मतलब ही होता है डिसिप्लिन। और फिर बाद में चलकर
हमें नहीं पता कि कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. वी हैव वन मोर निकाया दैट इज नोन एज, वन मोर पीटका दैट इज नोन एज अभिधम्ब पीटका. इसमें बुद्धिज्म से जुड़े जो मेटाफिजिकल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, कल बात हुई थी कि बुद्धिज्म डील्स विथ साइकोलॉजिकल थीम्स, वो थीम्स धीरे धीरे इसमें कंपाइल होते चले गए. सो हाउ मेनी पीटकास वी हैव? सुत्त पीटका, विनय पीटका, अभिधम्ब पीटका. इनको कहा गया पाली, क्योंकि इनकी लैंग्वेज क्या थी? पाली. पाली त्रिपीटकास. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किस लिटरेचर का? बुद्धिस्ट लिटरेचर का. बाकी सब कुछ यहीं से एमिनेट होगा, यहीं से डेवलप होगा. और इसकी लैंग्वेज क्या है? पाली है. बाद में व्हेन वी हैव महायाना बुद्धिज्म, तो संस्कृत में भी चीज़ें लिखी जाएंगी, लेकिन अभी उधर हम लोग नहीं जा पाएंगे. अगर जैना रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखिए कि लैंग्वेज इज अर्ध मगधी, दैट वाज अ फॉर्म ऑफ पाली. और जैना लिटरेचर का कंपाइलेशन, जो फाइनल कंपाइलेशन हुआ, दैट वाज एट बल्लभी. बल्लभी इज इन गुजरात. तो जैनिज्म का राइज होता है ईस्टर्न यूपी बिहार में, और इसका लिटरेचर फाइनली कंपाइल होता है कहाँ? बल्लभी में. और बल्लभी में भी सेकेंड काउंसिल होती है. जैनिज्म की कौन सी काउंसिल? सेकेंड काउंसिल. ये 5th या 6th सेंचुरी में होती है. एक बार गूगल करके कंफर्म कर लेना. 6th सेंचुरी AD में होती है, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर. और यहाँ जो कंपाइलेशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अंगाज. ये अंगाज टोटल 12 हैं. तो पूछ सकता है कि अंगाज किसके हिस्सा हैं? तो अंगाज आर पार्ट ऑफ लिटरेचर ऑफ जैनिज्म. फिर वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज उपांगाज, जैसे वेदाज, वेदांगाज. फिर यहीं पर लिखे गए सूत्राज. यहाँ पर भी सूत्रा लिखा गया, वैदिक असर. इन्हीं सूत्राज में से एक सूत्रा है जिसका नाम है भगवती सूत्रा. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. और भगवती सूत्रा में भी हमें 16 महाजनपद का रेफरेंस मिलता है. 16 महाजनपद आज. फिर इस लिटरेचर का एक और हिस्सा है जिसको डाइजेस्ट कहा गया, चूर्नीज. चूरन, जैसे हिंदी में वर्ड होता है ना, चूरन, चूर्नीज. तो कुछ नहीं तो सिंपल सा सवाल पूछ देगा कि चूर्नीज आर पार्ट ऑफ ए ब्राह्मणिकल लिटरेचर, बी बुद्धिस्ट लिटरेचर, सी Jaina literature. So they are part of Jaina literature. Is this clear? So this much about the literature part in this class. अगर ज़रूरत हुई तो एक और क्लास लिटरेचर पे कर लिया जाएगा, नहीं तो टुमारो देखते हैं किसी और थीम पे हम लोग बात करेंगे. Is that clear? So thank you so much for this cooperation.